नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। गुरुग्राम में 27 सितंबर 2025 फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट FMRI गुरुग्राम ने आज इलेक्टा यूनिटी MR लिनेक्स सिस्टम उपलब्ध कराने की पहली वर्षगांठ मनाई। यह उत्तर भारत का पहला और देश में दूसरा MR लिनेक्स सिस्टम है। सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ यह शानदार प्लेटफॉर्म रियल टाइम 1.5T MRI इमेजिंग का मेल एडवांस रेडिएशन डिलीवरी से करवाते हुए प्रिसीजन स्टिक ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में नए मानक रच रहा है। इस उपलब्धि के साथ ही FMRI ने एशिया में उन चुनिंदा अस्पताल समूहों जिनमें जापान, हांगकांग और थाईलैंड के केंद्र भी शामिल हैं के बीच अपनी साख को काफी मजबूत बना लिया है, जो MR निर्देशित रेडियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम है। इंस्टॉलेशन के बाद से अब तक FMRI में MR लिने की मदद से प्रोस्टेट, लीवर, पैनक्रियाटिक और अन्य कई प्रकार के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर समेत कई जटिल किस्म के कैंसर रोगों से ग्रस्त 187 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। भारत में कई तरह के जटिल कैंसर सामने आ रहे हैं, जिनमें प्रोस्टेट, लीवर, पैनक्रियाटिक और GI कैंसर प्रमुख है। MR लिनेक निम्न की पेशकश करते हुए पारंपरिक उपचार पद्धति की तुलना में बेहतर साबित होती है। अनुकूलित उपचार इसमें ट्यूमर के शिफ्ट होने या बदलने की स्थिति में हर दिन रेडिएशन को Please, members of the media and our distinguished guests, we are gathered here today to mark a significant milestone in India's cancer care journey, the first anniversary of North India's first MR Linac at Fortis Hospital, Gurugram. Since its launch, I was treated under the MR Linac machine, a latest technology. I recently underwent treatment with MR Linac. At first, I was very afraid, fear of the unknown. I came to Fortis Research Institute in Gurugram for treatment on the MRI Linac. Since I had gone through MRI Linac radiation process, Ask them who is the best radio-oncologist in India. They suggest me that Professor Anil Parmanan is the best oncologist in their opinion. कि हमने सुना है MR लिनेक आया है और कई बड़े डिफिकल्ट और बहुत चैलेंजिंग केस थे जहाँ पे कि रेडिएशन देना बहुत डिफिकल्ट था। सो कई सेंटर्स में वो नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ पे वो इंक्वायरी करते आए, फिर हमसे बात की। हमारे लिए भी चैलेंज था उनको ट्रीट करना। So somehow we developed the protocols and that is how we should treat. And I must say the team here at Fortis, we are 31 member strong team of radiation. So एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ये कोई एक आदमी नहीं कर सकता। मैं अकेला या डॉक्टर स्वरूपा और अमल एक नहीं कर सकते। ये पूरा डिपार्टमेंटल वर्क होता है जिसमें मेडिकल फिजिसिस्ट होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है इसको सेटअप करना मशीन को। हमारा रोल है पेशेंट को देखना कितनी डोज देनी है, नॉर्मल ऑर्गन्स को कैसे बचाना है, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे देनी है, और क्या जो हम उनसे प्रॉमिस कर रहे हैं क्या हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। At FMRI, we are now celebrating 1 year of MR Linac installation which we did last year, and then at that time it was a big challenge to have this kind of equipment in India because it was only the second machine in India. So when you bring in a new technology, you bring in a lot of challenges that how we will start doing its installation, its completion, regulatory checks, because this is a machine which is little complex compared to the other Linacs which we have been using for many years now. They are called CT scan based Linacs. This is MR Linac. It is actually a machine which is a combination of two machines. One is MRI. We all know you people must be getting MRI, which is so accurate for diagnosing a tumor and knowing its extent. And second is a high precision linear accelerator. So it was a dual technology and dual challenges for us. And I must say, I must be very thankful to all of the leadership in Fortis, the management, the biomedical technology people, the Electa people who are our partners in technology, and then our radiation oncology department where there are doctors, physicists, technologists.
worked relentlessly. So we had to work for nearly 9 months to install this machine here. It came separately MR, it came separately as linear accelerator. It was assembled here in a very closed and neat environment, dust-free environment. And then डॉक्टर हैं ये डॉक्टर नरेंद्र पाल, इनका हमने टेस्टिमोनियल मांगा था, तो रूबी उनका था इसको मोटिव पेनक्रियाज। आई डोंट नो कितने लोग जानेंगे कि पेनक्रियाज होता है हमारा, एक नॉर्मल पेनक्रियाज होता है जो स्टमक के पास, ड्यूटम के पास होता है। और इनका जो यस यू हैव समथिंग। Our endeavor is always been is that exploring newer technologies which adds to the benefit of the life of the patients and also improves the outcome drastically. I again extend my sincere gratitude to each one of you on behalf of the entire team sitting here, and our team is led by Dr. Anil and Dr. Sarupa and Dr. Amal, comprises of expert 33 people in the department, highly skilled, and we provide highly skilled treatment when it comes to radiation as a department. Because oncology is one of the largest program that we run out of this hospital, and which is medical oncology, radiation, surgical and all that. Probably in the country, I think जब हमारा इंस्टॉलेशन हुआ पूरे विश्व में हमारी मशीन का नंबर 80 था, and that time only 80 machines are available across the world. तो एक तो वो एक यूनिक फीचर था। और इस मशीन की खासियत क्या है कि इसके अंदर 2 मशीनों का समावेश किया गया है। एक तो जो जहां से रेडिएशन निकलती है जो इलाज करती है, लीनियर एक्सेलरेटर, और दूसरी मशीन है MRI। इन दोनों मशीनों को मिलाना, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ही इंजीनियर्स को बहुत टाइम लग गया है अब्रॉड में, और उसको हमारे यहाँ पे एक्वायर करके लाना फोर्टिस वाज पायनियर। एक्चुअली हमारी मशीन इंडिया में पहली मशीन इंस्टॉल होने का, ओपनिंग होने का प्लान था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस वी कुड नॉट। सो आज की डेट में ओनली 2 मशीन्स आर फंक्शनल इन होल ऑफ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में तो अपनी तरह की एक यूनिक मशीन है ये। तो एक तरह से ये देखा गया कि MRI में हमें एडवांटेज क्या मिला। CT स्कैन और MRI लिनैक का वैवाहिक संबंध हमने सालों से देखा हुआ है। 2007 से ही हम देख रहे हैं कि CT स्कैन और हमारी लीनियर एक्सीलरेटर एक मशीन में बन के आके, और उसका हम उपयोग भी कर रहे हैं इलाज के दौरान मशीन मरीज के। 1 साल कंप्लीट कर रहे हैं। एक हमने नई टेक्नोलॉजी शुरू की थी अगस्त 24 में, उसका नाम है MR लिनैक। इसका मतलब ये है कि ये एक हाइब्रिड मशीन है जिसमें 1.5 टेस्ला का MRI है और रेडिएशन का लीनियर एक्सेलरेटर है, वो दे आर कंबाइंड इनटू वन। गाइडेंस में रेडिएशन की डिलीवरी ट्यूमर पे कर सकें, so that radiation is very pinpoint, very precise to the tumor, and we are able to reduce dose to the normal structures. So इसका काम ये है कि अगर हम अच्छी डोज दे पाएंगे ट्यूमर को तो ट्यूमर कंट्रोल बेटर होता है, क्योर रेट्स आर बेटर, और अगर हम बाकी नॉर्मल ऑर्गन्स को अच्छे से बचा पा रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होंगे। तो ये बहुत बड़ी ट्विन एडवांटेज है, इम्प्रूव ट्यूमर कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ साइड इफेक्ट्स। और डॉक्टर साहब देखिए, अगर बात करें आपकी टेक्नोलॉजी की, वो बड़े लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका तो इलाज हो जाता है, लेकिन गरीब लोगों का कैसे होगा इस टेक्नोलॉजी से? बताइए किस तरह से कर पाए? तो गरीब लोगों के लिए हमारे पास दूसरी मशीनें हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि MR लिनैक पे नहीं होगा तो इलाज सही नहीं होगा। देखिए, मैन बिहाइंड द मशीन भी इम्पॉर्टेंट है। केवल मशीन से नहीं होगा, उसका संचालन कौन कर रहा है उस मशीन का, वो भी ज़रूरी है। सो CT स्कैन पे भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स क्योर हुए हैं जिनके लिए डिफ़िकल्ट था क्योर होना, और जो अफोर्डेबिलिटी में MR लिनैक नहीं अफोर्ड कर सकते थे उनका किया, और रिजल्ट्स इक्वल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स इन्फीरियर है। लेकिन जैसा कि आप लोग में से किसी ने प्रश्न पूछा कि ये डॉक्टर के लिए आरामदायक है या पेशेंट के लिए, सो पेशेंट के लिए आरामदायक
तो है ही MR लिनक डॉक्टर के लिए भी बहुत आरामदायक है कि हमें पता है कि हम ट्यूमर देख के एक्यूरेसी के साथ इलाज कर पा रहे हैं। सो गरीब जनता के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास फोर्टिस ने ऑप्शन नहीं दिए हैं। फोर्टिस के पास ऑप्शन है, हमारे पास 2 और मशीनें हैं जिसपे हम कम अफोर्डिंग पेशेंट्स का भी इलाज उतनी एक्यूरेसी से कर सकते हैं। बट वो एक अलग ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।